اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ عمر نہایت مؤدب، دیندار، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، والدین کی آنکھوں کا تارا، تمام دوست احباب اس کے اعلیٰ اخلاق کے گرویدہ۔ اللہ نے اس کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ عمر پڑھائی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا، نہایت ذہین اور ہونہار، اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کا پسندیدہ طالب علم، جس کو دن رات مفید علم پا لینے کی جستجو رہتی۔ بابا اور امی جان کی ہر وقت ہر فون کال پہ ایک ہی رٹ ہوتی، بیٹا اپنا گھر بسا لے، نکاح کر لے، تیرا دین مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار جائیں۔ ہم چاہتے ہیں تیرے لیے اپنے ہاتھوں سے دیندار نیک لڑکی بیاہ کر لائیں، جو تیری دین اور دنیا کا کل سرمایہ ہوگی، تیری آنے والی نسل کو پروان چڑھائے گی۔ عمر جو نہایت ادب سے والدین کی نصیحتوں کو سن رہا تھا، آخر کار اس کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ لمبی سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے بابا جان، جیسے آپ کی خواہش ہے، میں خوش ہوں، لیکن میں صرف 2 ہفتے کی چھٹی کے لیے آ سکتا ہوں، مجھے واپس آ کر اپنے امتحانات کی تیاری کرنی ہے۔ عمر بیٹا، ایک بہت اچھا رشتہ ہے، میرے بہت قریبی دوست کی بھانجی ہے، تمہاری ماں مل چکی ہے اس سے، بہت ہی عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صفات کی مالک ہے، تیرے لیے بہترین جیون ساتھی ہوگی، اور میں اپنی تحقیق کروا چکا ہوں۔ عمر کا دل تھوڑی دیر کے لیے خیالی تصورات میں چلا گیا، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد، ٹھیک ہے بابا جان، جو آپ کو مناسب لگتا ہے کر گزرے، مجھے پورا یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ خیر سے خالی نہیں ہوگا، آپ نے ہمیشہ میری بہترین رہنمائی کی ہے اور مجھے آپ کی پسند پہ کوئی اعتراض نہیں۔ بیٹا تو نے میرا مان رکھ لیا ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی، بابا بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ فرحت جذبات سے لبریز بابا بولے، بیٹا اللہ تجھے دین اور دنیا میں کامیاب کرے میرے بچے۔ بابا کی آنکھیں شدت اور جذبات سے امڑ آئی۔ یہ لے میرے بچے، ماں سے بات کر۔ ماں کی ممتا جو کہ پہلے ہی نچھاور تھی، اپنے فرما بردار بیٹے پہ سلام اور دعا کے طویل سلسلے کے بعد امی بولی، میرے چاند تو جمعرات کو آ رہا ہے، تو کیا ہم نکاح جمعہ کی نماز کے بعد طے کر لیں؟ میرے لال تو ادھر زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں تو اپنی دلہن کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارے۔ پر میرے بچے تو نے ابھی تک زلیخا کو تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی امی، نہیں دیکھا ہے میں نے زلیخا کو، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، ایک ہی بات ہے، مجھے آپ دونوں پر مکمل بھروسہ ہے، میری طرف سے آپ دونوں کو مکمل اختیار ہے، آپ اپنے فیصلے کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ ایک دم عمر کے دل کے نرم گوشے نے انگڑائی لی۔ زلیخا اس کی ہونے والی جیون ساتھی، جس کو نہ کبھی اس نے دیکھا نہ سنا، لیکن پھر بھی دل اس کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا، عمر کی دعاؤں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ سوچا جانے سے پہلے عمرے کی ادائیگی کی جائے۔ اللہ کے گھر عمر نے اپنے ہونے والی جیون ساتھی کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، تقوی اور خیر و برکت کی دعائیں مانگی، چونکہ یہ اس کی زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ تھا۔ دل میں سنت کی تڑپ اور لگاؤ نے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت، 6 فٹ کا قد، کشادہ سینہ، چہرے پہ سنت رسول سجائے کسی بھی لحاظ سے کم نہ تھا، موتیوں جیسے دانت جو کثرت مسواک سے اور دمکتے تھے، خوبصورت روشن آنکھیں اور کشادہ پیشانی کسی بھی دیندار دوشیزہ کے لیے ایک عظیم نعمت سے کم نہ تھی۔ پاکستان آمد پر والدین کی خوشی دیدنی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ بابا جان نے صبح کے انتظامات سے آگاہ کیا، نماز جمعہ کی ادائیگی اور پھر نکاح۔ عمر کے دل میں زلیخا کے دیدار نے ایک بار پھر شدت سے انگڑائی لی۔ اندیکھی انجان زلیخا اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ وہ وقت بھی آن پہنچا، دعائے کلمات اور مبارکباد کی پرجوش آوازیں بلند ہو رہی تھی، چھوارے اور مٹھائی کا دورہ چل رہا تھا، فضا میں مسرت بھرے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ طے پایا رخصتی نماز عصر کے بعد، چند قریبی لوگوں کی بارات رخصتی کے لیے پر تول رہی تھی کہ سر سے پاؤں تک ڈھکی زلیخا کو امی نے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ بابا جان نے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالا اور پھر عمر اگلی سیٹ پر بابا جانی کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی جی ٹی روڈ پر فراٹے لے رہی تھی۔ بابا جانی اور عمر ملکی حالات پر محو گفتگو تھے۔ عمر کی بھاری مردانہ آواز زلیخا کو بہت بھا گئی، جبکہ امی جان زلیخا کو ساتھ لگا کر بار بار دعائے کلمات دہرا رہی تھی۔ مسافت کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جان نے کہا، کیوں نہ کسی جگہ پہ رکا جائے، لیکن امی باز تھی کہ مغرب سے پہلے گھر
घर पहुंचा जाए। धीरे धीरे सूरज अपनी तपिश खो रहा था। जुलेखा का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में दुआए कलमात दोहरा रही थी। अजनबी मंजिल का अजीब मजा, तड़प, शौक और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात का इम्तजाज। ठीक आधा घंटा मगरिब से पहले वो अपने घर के दरवाजे पे थे। अम्मी से चाबी लेकर उमर ने मेन गेट खोला। चुनाचे मौका गनीमत जानकर जुलेखा ने दुल्हा जी को देखने की ठानी, लेकिन गेट खोलते ही दुल्हा मियाँ अंदर तशरीफ ले जा चुके थे। बाबा जानी ने खुले गेट से गाड़ी घर के बड़े सहन में पार्क की, जबकि दुल्हा मियाँ घर के ताले और घर की बत्तियां जलाने की तगदो में दिखाई दिए। जुलेखा का दिल मचला और जी चाहा वक्त इधर ही रुक जाए और वो अपने दुल्हा जी को देखती रहे। वाबडा की करम नवाजी के क्या कहने, बिजली का जनाजा उठ चुका था। वाबडा के कारनामे हर वक्त लोगों की खुशियों को दोबाला करने में कार फरमा। पूरे घर के दरवाजे खोल चुके थे, लेकिन हल्का अंधेरा छा रहा था। अम्मी ने आवाज लगाई, उमर मोबाइल की बैटरी ले आओ तो दुल्हन और सामान को कमरे तक ले चलें। बाबा वॉशरूम जा चुके थे अपने मोबाइल की बैटरी के सहारे से। जी अम्मी आया, उमर की मौद्दिब आवाज गूंजी। बेटे जुलेखा को अंदर ले चलो, मैं तुम्हारे बाबा के साथ सामान निकालती हूँ। नहीं अम्मी मैं करता हूँ, आप जाएं। अरे नहीं नहीं बेटा, दुल्हन लंबे सफर से आई है, इसको कमरे में ले चलो। उमर ने अपने दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, आ जाएं, मैं आपको अंदर ले चलूं। जुलेखा का दिल बलियों उछल रहा था। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि दीनदार, खूबसूरत और खूबसूरत शख्स उसकी जिंदगी का हमसफर है। दिल में बिस्मिल्लाह बोलकर उसने अपना दस्ताने वाला हाथ आगे बढ़ा दिया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। जुलेखा ने दिल ही दिल में सोचा। चंद लम्हों में वो अपने कमरे में आन पहुँचे। आप इधर रुके, मैं किचन से मोमबत्तियाँ लेकर आता हूँ और आप अपना बुर्का उतार लें। चंद लम्हों बाद उमर 2 मोमबत्तियों समेत इनको जलाने की तगदों में मसरूफ था। फिर बोला, मैं एक मोमबत्ती वॉशरूम में रख रहा हूँ और एक कमरे के लिए है। मगरिब की अजान का वक्त हुआ चाहता है और मैं वजू करके मस्जिद जा रहा हूँ। जुलेखा ने धीरे से बोला, जी। दस्ताने और बुर्का उतारा ही था कि उमर वॉशरूम से बाहर निकला। अचानक नजर उसके मरमरी पतले हाथों पे पड़ी। बहुत पतले और नाजुक हाथ, लेकिन रंगत का अंदाजा करने से कासिर था। जी वो मुझे वजू करना है, जुलेखा धीमे लहजे में बोली। जी जी जरूर, लेकिन आप इस लिबास में कैसे वजू करेंगी? उमर ने चटती निगाह डालकर इस्तफसार किया। जी वो मैं कर लूंगी, मुझे आदत है अक्सर बुर्के में भी वजू करने की। उमर लंबी सांस खींचकर, चले जैसे आपको मुनासिब लगता है, मैं मगरिब के लिए जा रहा हूँ। निकाह के 2 बोलों ने उसकी सारी सोचों का मरकज उमर को बना दिया। उसने तो कभी ना किसी गैर महरम मर्द को चाहा, ना देखा और ना ही कभी किसी को छुआ, लेकिन ये शख्स तो अभी से ही उसके दिल में डेरा डाल चुका था। एक अलग सा इत्मीनान, तहफ्फुज़ का एहसास और शदीद कशमकश का एहसास इसको सरशार किए जा रहा था। वजू से सारा बनाव सिंगार और मेकअप पानी की नजर हो चुका था, लेकिन जुलेखा इस चीज की परवाह किए बगैर जाय नमाज पे खड़ी थी। अपने रब के सामने सजदा रेज थी और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थी। दरवाजे पे आहट ने जुलेखा के दिल को एक और बार तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। खुद से बोली, यकीनन उमर वापिस आ गए हैं। बाहर से अम्मी की आवाज आई, बेटी मैं हूँ। जुलेखा दरवाजे की तरफ लपकी और अम्मी का इस्तकबाल किया। अम्मी इस हुलिये में बहू को देखकर सदके वारी हो रही थी। मेरी बच्ची, मेरी बहू का अपने रब से मजबूत ताल्लुक है। प्यार से गले लगाया, माथा चूमा और ढेरों दुआएं दी। खाना लगाऊं? नहीं अम्मी मुझे भूख नहीं, आप उनसे पूछ लें, शायद वो खाएं। उमर और बाबा जान कमरे में दाखिल हो चुके थे। कदरे ऊंची आवाज से सलाम बोला। अचानक नजर दुल्हन के सांवले हाथों पे पड़ी तो एकदम दिल बुझ सा गया, लेकिन अपने जज्बात को ना जाहिर करने में कामयाबी का झंडा गाड़ा। बाबा जान ने भी खूब मोहब्बतें निछावर की और खाने के लिए बुलाया, लेकिन उमर ने भी साफ इनकार कर दिया कि भूख नहीं है। बाबा जान ने बोला, बेगम पिसे बादाम और दूध ले आए, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा इस सुन्नत को पूरा करे। अम्मी ठीक 2 मिनट बाद ठंडे दूध का गिलास लिए उमर को थमाते हुए बोली, बेटा पहले खुद पियो और फिर जुलेखा को पिलाओ। उमर ने घटाघट दूध का आधा गिलास पिया और बाकी जुलेखा को पकड़ाया। उसने भी अजीम दिक्कत के साथ चंद घूंट नीचे उतारे और अम्मी बाबा की तरफ देखा तो दोनों मुसरत भरे जज्बात से बोले, और पियो बेटी। लेकिन जुलेखा के मुसलसल इनकार पर
उमर को बकिया दूध खत्म करने का हुक्म सादिर हुआ। उसके बाद अम्मी बाबा को लेकर कमरे से जाते हुए बोली, बेटी मैंने तुम्हारी जरूरत का सारा सामान इस कोने में रख दिया है। वो दोनों जा चुके थे। कमरे में खामोशी का राज था। जुलेखा शर्म से सर झुकाए खड़ी थी तो उमर बोला, आप तशरीफ रखें, और खुद वो अपनी किताबों को ऊपर नीचे करने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो गोद पे हाथ रखे सर जरूरत से ज्यादा झुकाए बैठी थी। चेहरा तो ठीक तरह से दिखाई नहीं दिया, लेकिन हाथों की रंगत बता रही थी मोहतरमा काफी सांवली हैं, जिसके गम ने उमर को अंदर ही अंदर चाटा। उसका दिल बुझ सा गया कि आखिर अम्मी बाबा ने उसका इंतखाब क्यों किया, मेरा और उसका भला क्या जोड़ है। वो खुद ही दिल में सवाल जवाब किए जा रहा था। उमर का दिल टूट चुका था। इसको अपने वालिदैन से ऐसे इंतखाब की उम्मीद न थी। आखिर ज़ाहिरी हुस्न भी कोई चीज है। इतने साल खुद को औरत के फितनों से बचाए रखा, जनाकारी के से खुद को बचाया, तो किस लिए? एक हलाल रिश्ते के लिए, एक दिल को मुंह लेने वाली बीवी के लिए। लेकिन इसमें तो कशिश ही नहीं है, सांवली सी मरियल कुकड़ी। उमर के अंदर सर्द जंग का सिलसिला जारी था। दिमाग जैसे माउफ हो रहा था, लेकिन उसका ज़मीर बार बार मलामत कर रहा था। लेकिन देखो, तुम दीन वाले को तरजीह देना। किताबों के तरतीब के बाद उमर जुलेखा की तरफ पलटा और बोला, देखे मैं किताबी कीड़ा हूँ, किताबों में रहने वाला, लिहाजा महदूद वक्त की बिना पर आपके लिए एक किताब का इंतखाब किया है। जुलेखा झुके चेहरे और धीमे लहजे से सिर्फ जी कर पाई, मेरे ख्याल में आप ये भारी भरकम लिबास तब्दील कर सकती हैं। उमर को जैसे उसके बनाव सिंगार से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने इस एहसास को छुपाने की भरपूर कोशिश की। जुलेखा भी जवान, जज्बात, एहसासात रखने वाली लड़की थी। उसके रवैये को समझ गई और लिबास तब्दील करने के लिए कोने में पड़े सूटकेस का रुख किया और सफेद काटन का सादा सा शलवार कमीज निकाला, जिसके ऊपर हल्के गुलाबी और काले रंग की कढ़ाई थी और साथ बड़ा सा छोटे छोटे फूलों वाला दुपट्टा। वो वॉशरूम के अंदर थी और फिर दीवार के साथ लगकर अपने बेकाबू आंसुओं की झड़ी को नहीं रोक सकी। खूब आंसू बहाकर शावर लिया और बाहर निकलने से पहले चारों तरफ दुपट्टा लपेटकर माथे पे हल्का सा घूंघट निकाल लिया। बाहर आई तो उमर ईशा के लिए जा चुका था, तो उसने भी आफियत नमाज में ही जानी और पूरे खुशू के साथ नमाज शुरू कर ली। अपने मरमरी हाथों को अपने रब के सामने आजिज़ी और इंकिसारी से फैला दिया। ए मेरे रब, मेरे खाविन के दिल में मेरे लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा कर, मुझे उनकी नजर में पुरकशिश बना दे। बिना किसी दिक्कत के आंसू की झड़ी जुलेखा के गालों को भिगोई जा रही थी। ना चाहते हुए भी आंसू सारे बंद तोड़कर लगातार उसके सूती दुपट्टे को गीला किए जा रहे थे। एकदम आहट सुनकर उसने अपने चेहरे को रगड़ डाला और बिस्तर पे पड़ी किताब के औराक उलटना पलटना शुरू कर दिए। दोबारा से मर्दाना सलाम ने उसके दिल पे दस्तक दी। फिर वही धीमा अंदाज और झुकी झुकी गर्दन से जवाब आया, सुने? उमर पुकारा। जी। जुलेखा का जवाब, आपने खाना खाना है? मैं अम्मी को बोलता हूँ आपको गरम कर दें। जी नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, जुलेखा बोली। चले, आप नहीं खाती तो मैं भी नहीं खाता, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। 2 दिनों से सफर की थकावट है और आप भी लंबे सफर से आई हैं, आराम करें। जुलेखा किसी रोबोट की तरह उठी और बिस्तर के एक कोने में लेटकर खुद को अपने दुपट्टे में लपेटा और अज़कारे मसनूना में मशगूल हो गई। इधर दूसरी तरफ भी यही सिलसिला जारी था। नींद के आसार दोनों तरफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन राह फरार का यही एक जरिया था। बज़ाहिर बंद आंखें, लेकिन दिलो दिमाग शिद्दत गम से चूर था। जुलेखा बार बार इस नुक्ते को सोचे जा रही थी कि क्या मेरी नादरा वाली तस्वीर उमर को नहीं दिखाई गई, जबकि अम्मी जान ने मुमानी से खास दरखास्त करके उमर को दिखाने के लिए ली थी। फिर आखिर क्या हुआ है जो इनकी आंखों में मेरे लिए किसी किस्म के जज्बात नहीं हैं? मुझे तो इन लोगों ने तस्वीर दिखा दी, पर अपने बेटे को क्यों ना दिखाई? मैं तो रिश्तों से तरसी हुई हूँ। बचपन में वालिदैन का इंतकाल, ना कोई बहन और ना कोई भाई, और अब खाविन मिला है, वो इतना करीब होके भी कोसों दूर। दिल में ठेस उठी और आंखों ने खुलकर बरसना शुरू कर दिया। क्या हुआ जो मेरा रंग सांवला है? दिलो दिमाग तो नहीं है? आंखों में बरसात का सिलसिला तसलसल से जारी था। दिल शिद्दत गम से निढाल था। सफेद काटन का दुपट्टा जख्मों पे मरहम का काम कर रहा था। आंखों से बरसती बरसात को काफी हद तक जज्ब कर चुका था। नींद
नींद कोसों दूर थी। दिल कर रहा था जोर जोर से धाड़े मारे, लेकिन वो उमर को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं है तो मैं कभी इनको मजबूर नहीं करूंगी। हाँ, अपने हकूक जरूर पूरे करूंगी जो कि मेरी तरबियत का हिस्सा है। कमरे में दीवार पे लगे घड़ियाल की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बाबला की आंख मचोली जारी थी। कमरे में लगा जीरो का बल्ब भी बुझ चुका था। जुलेखा इंतजार में थी कि लाइट आए तो वो वक्त का तयन कर सके और अपनी रोजाना की रूटीन तहज्जुद के नवाफिल शुरू करे। रात के 2 बज रहे थे। जुलेखा चुपके से धीमी चाल से कमरे से निकलकर वॉशरूम में जा चुकी थी। अच्छी तरह से वजू किया, चेहरे पे ठंडे पानी के छींटे मारे और वापस खामोशी से कोने में पड़े जाए नमाज पे खड़ी हो गई। फिर वही बरसात का सिलसिला और सीने में तड़प, चारों नाचार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बेसूर। अपनी पेशानी को सजदा रेज कर दिया और खूब गिड़गिड़ाई, मेरे मालिक मेरी इस आजमाइश को आसान कर, बेशक तू ही मुश्किल कशा है। उमर तो ना जाने रात के किस पहर नींद की गहरी वादी में जा चुका था। अब जुलेखा इस शशो पंज में थी कि इनको उठाऊं या ना उठाऊं, और अगर उठाऊं तो कैसे। 5 मिनट की सोच विचार के बाद जुलेखा ने उमर के पाँव को हल्का सा झिंझोड़ा, लेकिन वो घोड़े बेचकर सो रहा था। आखिर तीसरी कोशिश पे हड़बड़ा गया। आंखें मली तो देखा जुलेखा उसके पास खड़ी थी। फौरन बोली, जी वो आपकी फजर की जमात निकल जाएगी, अजान हो चुकी है। उमर दिल ही दिल में खुश हुआ, चलो मोहतरमा नमाज की तो पाबंद है। फौरन उठ खड़ा हुआ, वजू किया और मस्जिद का रुख किया। जुलेखा ने फजर की नमाज अदा की और तिलावत कुरान पाक शुरू कर दी। जुलेखा की तिलावत ने उमर को दरवाजे पर ही सुनने पे मजबूर कर दिया। इतनी खूबसूरत आवाज और शीरी लहजा उसने आज तक ना सुना। वो दिल ही दिल में दाद दे गया। उमर के कमरे में दाखिल होते ही बाबा ने आवाज लगाई, जी बाबा जान फरमाइए। वो बेटा, मुझे लगता है हमें कल इतवार का वलीमा मुलतवी करना पड़ेगा। सब खैरियत है ना बाबा जान? थोड़ी देर पहले तुम्हारे फुप्पा का फोन आया था। तुम्हारी फुप्पो काफी बीमार हैं, इसलिए मुझे खारिया जाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ दिन रुकना भी पड़ जाए। बाबा, जैसे आप बेहतर समझते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। पीछे से अम्मी की आवाज आई, मैं भी जाऊंगी, इतना अच्छा वक्त गुजरा है हमारा बाजी नुसरत के साथ, जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं, लिहाजा मैं जाऊंगी। पर उमर की माँ, पीछे दुल्हन अकेली है, इसको घर की किसी चीज का पता नहीं है, कौन सी चीज किधर पड़ी है। मुझे अपनी जुलेखा पे पूरा भरोसा है, ये मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। अम्मी फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। आखिर बाबा को मानना ही पड़ा। जुलेखा मेरी बच्ची, इधर आ, मैं तुझे जरूरत की सारी चीजें दिखाऊं। जुलेखा कुरान मजीद को रख कर फौरन उनके पास आन पहुंची। अम्मी बाबा की दुआओं का सिलसिला फिर शुरू हो गया। बाबा बोले, उमर की माँ फिर से सोच लो। अरे आप क्यों घबराते हैं, मेरा उमर है ना जुलेखा का ख्याल रखने के लिए। एकदम से जुलेखा के दिल में ठेस उठी और आंखों की नमी को छुपा लिया। चंद सेकंडों में अम्मी और जुलेखा किचन में जा चुके थे। उनके जाते ही बाबा ने लंबी सांस ली और समझाने के अंदाज में बोले, देखो बेटा, हमारे पीछे तुमने बहू का खास ख्याल रखना है। इस बच्ची ने यतीमी की जिंदगी गुजारी है और बहुत मुश्किलात देखी हैं। जी बाबा, आप घबराए नहीं, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे, अल्लाह तेरा दामन खुशियों से भर दे। और हाँ, मैं गाड़ी छोड़े जा रहा हूँ, पीछे से तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। बहू को थोड़ी देर बाहर ले जाना या एक चक्कर मनी का लगा लेना। सोचो में गुम उमर, जी बाबा जानी। अच्छा बेटा, हम अभी नाश्ते के बाद निकलेंगे, इंशाल्लाह तुम आराम करो। अम्मी और जुलेखा की हंसने की आवाजें किचन से आ रही थी, जैसे एक दूसरे को सालों से जानती हैं। उमर दोबारा सोने के लिए पर तोलने लगा, जबकि जुलेखा अम्मी के साथ खुशगपियों में मसरूफ थी और साथ साथ हर चीज का जायजा भी ले रही थी। मामू के घर कितनी गुर्बत थी और यहाँ हर चीज कितनी नफीस है। काश इन चीजों का मालिक भी मेरा हो जाए। दिल में दोबारा से एक खौफ उठी। जुलेखा, जाओ नाश्ते के लिए उमर को भी बुला लाओ, तुम दोनों ने रात को भी कुछ नहीं खाया। तो जुलेखा कमरे में आई तो देखा उमर तो ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा है। कमरे की हल्की सी रोशनी में दिल किया इधर ही खड़ी होकर अपने दिल के मालिक को इसी तरह देखती रहे। लेकिन अम्मी अब्बू को खुश करने के लिए चारों नाचार नाश्ता उनके साथ खाया। उनकी रवानगी का वक्त आ गया। जुलेखा का दिल गमगीन था, मैं तो अकेली रह जाऊंगी उमर के साथ और उनको तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है मेरे में। मुझे दिल के साथ सोचा। अम्मी बाबा को रुखसत करके किचन में सफाई की ठानी, फिर सहन में सफेद कपड़ों की टोकरी से कपड़े निकालकर इनको सरफ में डिबो दिया। किचन को साफ करके दुपट्टे को एक साइड पे रखा और कपड़ों की रगड़ाई शुरू कर दी। कपड़ों की रगड़ाई में इस कदर मगन थी कि आगे पीछे का कोई होश नहीं था। उमर ने 5 मिनट खूब जायजा लिया और फिर सलाम
जाम झाड़ा। जुलेखा एकदम अपने ख्यालों में मगन घबरा गई और मुंह पे हाथ रखकर चीख को रोक लिया। बेध्यानी में साबुन वाले हाथ चेहरे को काफी हद तक मैला कर चुके थे और साबुन का झाग नुमाया हो रहा था। उमर ने अपनी हंसी को रोकते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? जी मैं कपड़े धो रही हूँ। अच्छा तो ये मशीन किस खुशी में पड़ी है? सिर्फ घर की खूबसूरती के लिए? आपको पता है आप कौन हैं? जी मुझे पता है, मैं जुलेखा मुराद हूँ। उमर हंसी छुपाते हुए बोला, नहीं बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप। जुलेखा हैरत से उसका चेहरा पढ़ने लगी। आप दुल्हन हैं और वो भी नई नवेली। उमर ने जोर देकर बोला। एक ठीस फिर उठी और आहिस्ता से जी बोल पाई। हवा के झोंके ने माथे पे पड़े बालों को उलझा दिया। फिर बिना सोचे साबुन वाले हाथों से इनको पीछे हटाया। उमर की हंसी छूट गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है? शक्ल देखी आईने में अपनी जरा। जुलेखा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन आईना नजर न आया। छोड़े, आईना को मैं खुद साफ कर देता हूँ। उमर ने गीले हाथों से साबुन से अटे बाल और चेहरा साफ किया और फिर पूछा, आपको खाना पकाना आता है? बड़े ही पुरजोश लहजे में, जी मुझे सब कुछ आता है, जुलेखा ने जवाब दिया। अच्छा, उमर बोला, फिर तो आप मकानों की तामीर का काम भी जानती होंगी। जुलेखा हैरत से उसका चेहरा देख रही थी। मैं सोच रहा हूँ आपको ईंटें, बजरी और रेत मंगवा दूं और आप मुझे एक गुसलखाना तामीर कर दें। बेसाख्ता जुलेखा की हंसी निकल गई और उमर ने भी जोर का कहका लगाया। मैं बाहर से खाना लाता हूँ, आप ये सब समेटें। अरे नहीं नहीं, बाहर से खाना ना लाएं, मैंने तो पराठों के लिए मसाला और आटा तैयार कर रखा है। आप कुछ भूल रही हैं कि आप नई नवेली दुल्हन हैं और नई दुल्हनें ऐसे कारनामे सर अंजाम नहीं देती बल्कि नखरे उठवाती हैं। दुल्हन पुरानी हो या नई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए और ये सब मेरी तरबियत का हिस्सा है। और वैसे भी मुझे फारिग बैठना पसंद नहीं है। फारिग इंसान शैतान का घर है। उमर बड़े इन्हिमाक से उसकी बातें सुन रहा था। अच्छा जी, जैसे आपकी खुशी, उमर बोला। ये दे, मैं तार पे लटका दूं। उमर ने हमदर्दी झाड़ दी। बस मैं अच्छी तरह खंगाल के लाई। जुलेखा का पाँव एकदम गीले फर्श पर फैले सरफ से फिसला, जो कि उसके 14 तप रोशन करने के लिए काफी था। उमर ने फौरन आगे बढ़कर इसको मजबूती से थाम लिया। उमर जुलेखा को थामते हुए बोला, सुने मोहतरमा, आपकी ये शौक मेरा कचूमर निकाल देंगे। अगर कोई हड्डी पसली टूट जाती तो बाबा ने मेरी हड्डियां भी तोड़ देनी थी, लिहाजा होश के नाखून लें। जुलेखा एकदम संभली और शर्मिंदगी से बोली, कोशिश करूंगी कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूं। जाएं जाकर कपड़े बदले, मैं ये सब फारिग करता हूँ। जी अच्छा। जुलेखा का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे था। कमरे में आकर लंबी सांस ली। सूटकेस से सादा सा फिरोजी सूट निकाला, शावर लिया और सीधी किचन में पराठे बनाने लग गई। बाहर देखा तो उमर कपड़ों को फैलाने की तगोदो में मसरूफ था। तैयार शुदा पराठे और चाय मेज पे सजाई और धीमे लहजे में उमर को पुकारा। अंदर आते ही उमर की नजर जुलेखा के घटाओं जैसे काले लंबे बालों पे पड़ी, जिनसे पानी की बूंदें मोतियों की तरह टपक रही थी। दिल ही दिल में बोला, सांवली तो जरूर है लेकिन खूबियों से भरी हुई है। आप भी आ जाएं, उमर ने पुकारा। नहीं, मैं अम्मी और बाबा के साथ खा चुकी हूँ, मैं जरा कमरा दुरुस्त कर लूँ। सारी चीजें समेटी, बिस्तर दुरुस्त किया। बाहर से उमर ने पुकारा, आए जी, इधर बैठे। कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई। मेरी तरफ देखे, उमर ने नरमी से पुकारा। एकदम से नजरें उठाई और फिर फौरन नीचे झुका ली। आप खाना खा चुके हैं? तो मैं ये बर्तन धो लूं? बड़ी मुश्किल से फंसी हुई आवाज निकाली। जी मैं खा चुका हूँ और बहुत मजा आया है, आपको शुक्रिया के लिए बुलाया था। जोहर के बाद हम दामने को जाएंगे और उसके बाद असर फैसल मस्जिद में। आप कभी आई हैं पिंडी पहले? जी कभी भी नहीं। जोहर के बाद नौबियाता जोड़ा दामने को की तरफ रवाना था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। जुलेखा पर्दे में लिपटी गहरी सोचों में गुम थी। उमर ने खामोशी को तोड़ा, आप बोलती बहुत कम है। मैं बोलती हूँ, वक्त जरूरत। दोनों दामने को पहुंच चुके थे। गहरे सरसब्ज और सफेदे के दरख्त, नाहमवार जमीन। फिर दोनों एक कोने में जा बैठे। जुलेखा फिर से खामोश और सोचों में गुम। उमर ने सवाल दागा, आप कहाँ तक पढ़ी हैं और शादी से पहले क्या मसरूफियाँ थी? प्राइवेट BA किया है, मदरसे में कुरान और घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। आपके वालिदैन को क्या हुआ था? मैं 2 साल की थी तो एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए और फिर मेरे मामू ने मेरी कफालत की जिम्मेदारी ले ली। बचपन से आज तक गुर्बत के बावजूद दोनों ने दीन को नहीं छोड़ा और दीनी तरबियत की। जुलेखा बोल रही थी और उमर पूरी तवज्जो से इसको सुन रहा था। शायरी पसंद करती हो? जी सुने, आपको मेरा सावला रंग पसंद नहीं है और मैं ये कल ही जान गई थी। जुलेखा मुराद कल रात तक नहीं था, लेकिन तहज्जुद की नमाज और तलावत कुरान ने आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दिया है। और मुझे पता था कि आप तहज्जुद के लिए उठी थी।
مجھے فخر ہے کہ میری مضبوط عقیدہ اور سنت سے لگاؤ رکھنے والی بیوی میری مضبوط نسل کو پروان چڑھائے گی۔ میں داد دیتا ہوں امی بابا کی پسند کو۔ زلیخا مراد، آپ میری دلہن ہیں، آپ میری پاکیزہ، باکردار اور باحیا دلہن ہیں، جس کی اعلیٰ تربیت نے میرے دل میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ زلیخا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے بھر آئیں، جن کو عمر نے اپنے ہاتھوں میں سمو لیا۔